Hello everyone, I hope you are all fantastic. Today in this video, which is about the polity section of GS paper 2 of paper 2021 conducted by UPSC in the initial part of this year only, and this video had to be made just after the days when UPSC conducted this paper, but better late than never because of some reason I could not make it. But yes, this year main examination are all set to start from 16 September. So it will be useful because I have included the current development. The questions are relatively older of last year, conducted this year only, but the developments of July month, of June month have been covered in this analysis. And there are two things before I start analyzing this paper. First, today we have this 15th of August 2022. So many wishes for this Independence Day. I hope you might have celebrated this morning. You might have heard the address also. All people who are hearing this, सभी लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया होगा. एंड इसी तरीके से हम लोग अपने इस इंडिपेंडेंस वाली जो फीलिंग है इसको चेरिश करते रहें. बट द रियल इंडिपेंडेंस कम्स व्हेन वी हैव relevant study, and it is liberate ourselves from what is called as myself. This is very important to get independence from myself, and then only you will be reaching to what is called as ourselves. This is something that you will be understanding when you are developing a sense of empathy for the downtrodden, for the person who is needing your help in whatever capacity you can, right? So this is what is the case. Then second thing is about uses of the slides and content in it. Actually, I have a habit because as an offline faculty, मेरे को एक बोर्ड चाहिए होता है, मार्कर होता है और लिखना होता है. देखना कुछ नहीं होता. बहुत कुछ रोट मेमोराइजेशन में आ जाता है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बार बार उसी चीज़ को पढ़ाते हुए. कुछ करंट की चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी हमें मेमोरी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होता है. So whatever I have read in current affairs, I would like to reduce it to my own writings. And when I have done that, I have memory of it. So this is something that I have a little switch over on the recommendation of my team. They have told that yes, you can use the content in the slide. They have given it in fact, so that we can save the time, because in this video, no one is there in the studio room and camera. You will be seeing this video and me. So I am talking to you through this video. So the time will be saved because I will be taking 3 hours, 4 hours for this video. If I'm using the content in the slide already, so the duration may be 1 hour, 1.5 hours or so, because dictation is also not there in this class. So we can begin the today's business. So today's business is about the UPSC CSE 2021 GS paper 2. Before I start, I would like to tell you that GS paper 2 is mainly having sections called as polity, governance and social justice, right? Governance and social justice and international relation. So in polity, more or less 9 or 10 questions are there every year. So this year we have 9 questions from polity. Polity means the constitution and related things. Say for example, CBI is not given in the constitution, but it is related to the laws covered under the parliamentary acts and also the constitution. Then constitution, because I am saying that the state list is having policing subject. So CBI, forward and backward linkages you will be finding with that. Law and order is also there, another subject. Then from IR, there were 4 questions.
and rest 7 questions were from governance and social justice. It is more or less current loaded topics. I will be discussing the governance topic also, the 7 questions, in another video because the video length should not be more. So I have covered only 9 questions of polity and of the constitution here, right? I'll be giving you the overview for from what all content or subheads the questions have been asked, whether the paper was quite unpredictable or it was on the predictable line. Were the questions new, very new, or these were the repeat of the last year paper, questions asked by UPSC? So the overview, I have 2 slides to just give you the exposure. These are all the questions and you can see the bold letters underlined one wherein the main content has been focused upon by the UPSC. We'll be going for every questions analysis independently with the independent slide. But to begin with, the constitutional morality, the doctrine of constitutional morality has been talked about by UPSC. And year before, in GS paper 4, the same question was there, constitutional morality. But of course, the content is different because here we can very well use the constitutional provision like Article 19(1)(2), the reasonable restrictions, DPSP, fundamental duties, and other fundamental rights. But not here we can use the moral fabrics of the nation and the scholastic contribution like scholar means the Socrates, Aristotle. Will not be using it. Then another content of the question is greater representation to women in the higher judiciary. So basically here we have the judiciary in picture, but the you can say representation of women in them, that how many women judges आपको याद आता है अभी फातिमा जी के अलावा और कौन कौन से जजेस अभी की डेट में याद आते हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं जहां पर आपको वुमेन जजेस मिलेंगे एज चीफ जस्टिस, राइट? एंड उसके अलावा कितने जजेस और बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जो CJI नहीं भी बने बट जजेस हैं. सो ये एक बहुत पुअर स्टेट है जो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. देन अनदर क्वेश्चन इज फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280. हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. इस बार बेसिकली 32 से 42 का परसेंटेज एक स्टेट की साइड में चला गया है. कुछ ऐसी ऑटोनॉमी वाली बातें भी आई हैं स्टेट के लिए कि जिससे हमारे जो फेडरल फैब्रिक्स हैं वो थोड़े से मजबूत हों. सो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रिज्म शुड नॉट बी देयर मोर, सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड नॉट बी देयर. ऐसी इस पे बातें हम लोग एनालाइज करेंगे. देन द question after this is talking about the parliament is able to ensure accountability of the executive. Here executive यहाँ पे कौन है, मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ, ये मोटे पेट का आदमी है, ये या तो MP है या MLA है, राइट? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है यहाँ पे मिनिस्टर. तो मिनिस्टर और MP MLA इन दोनों नोमेनक्लेचर में अंतर है बेसिकली. क्यों? क्योंकि MP जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो ये यहाँ पे एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, जबकि मिनिस्टर जब फील्ड में काम करता है तो वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव होता है. सेम पर्सन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. तो पार्लियामेंट जो अपने आप में एक बॉडी है वो कैसे इस मोटे पेट के आदमी के ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर करती है कि भाई सारा का सारा पनीर जो है वो आपने खा लिया और देश में इतनी सारी गरीबी है, आप इतने आराम से कैसे सोते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमते हैं, बट गरीब आदमी जो है गाड़ियों की तो छोड़ो, साइकिल भी छोड़ो, उसके पास खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो खाने की जरूरत होती है उतना भी अमाउंट नहीं है. सो ऐसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है, विल बी डिस्कसिंग थिंग्स अबाउट हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पर केज्ड पैरेट जैसी जो सेइंग्स हैं वो दिमाग में आ जाती हैं तुरंत. तो यहाँ पे CBI और बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में जो टसल चलती रहती है, सेम गवर्नमेंट है, मींस जो आज की गवर्नमेंट है सेंटर में और स्टेट में है, तब तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. लेकिन अब बात करें वेस्ट बंगाल की,
जहाँ पे दीदी बैठी हुई है, राइट। दीदी, बहन जी और अम्मा, ये 3 वर्ड्स काफ़ी चलते हैं, तीनों में अंतर होता है, बट डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर स्टेट्स के पास क्या राइट होते हैं? एनआईए, सीबीआई के दोनों के बीच में यदि हम फंक्शनैलिटी को देखें तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, वो भी हम इस वाले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। देन अनदर क्वेश्चन इज अबाउट द ह्यूमन राइट कमीशन से है दैट हमारे यहाँ पे एनएचआरसी हैं, स्टेट लेवल पे एचआरसीज हैं, तो ये वास्तव में वॉचडॉग हैं हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन के, या इनके पास हम कंप्लेन कर रहे हैं उनका कुछ होता भी नहीं है? क्योंकि ये केवल एडवाइजरी इन नेचर है इनकी रिकमेंडेशंस, इनके पास कोई टास्क फोर्स नहीं है। इवन एनएचआरसी के अंदर में जो लोग आते हैं उनकी अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म भी काफ़ी एक फिक्सेशन में, यानी कि फिक्सिंग मैकेनिज्म में हो सकती है। फिक्सिंग मतलब बायसनेस कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट वांट द पपेट पीपल अराउंड इट, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, रबर स्टाम्प, ओके, जो वो चाहे वैसा हो जाए। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आए क्यों हैं, व्हाट मोटिवेट्स यूपीएससी टू फ्रेम सच क्वेश्चन, ये भी समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल या उसके अगले साल एज एन एस्पिरेंट यू मस्ट हैव द स्मार्ट थिंकिंग इन योर माइंड कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द नोशन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर इक्वालिटी जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कैसे फॉलो होता है और यूएस में कैसे फॉलो होता है। जैसे आर्टिकल 14 जब हम पढ़ते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बेसिकली ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। लेकिन यूएस के अंदर इक्वालिटी जो बिल ऑफ राइट्स हैं कैसे निकलते हैं, हमारे यहाँ पे सोशल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी फॉलो होती है क्या, और यदि यूएस में फॉलो होती है तो कैसे डिफरेंट है इंडिया से, राइट। जैसे बच्चों की बात है तो 4 ईयर्स से 16 ईयर 6 ईयर से 14 ईयर्स तक इंडिया में होता है, बट यूएस में वो चीज़ 16 ईयर्स तक मानी जाती है कि 16 साल से पहले जो चाइल्ड है वो एडल्ट नहीं माना जाएगा। बट इंडिया के अंदर 14 ईयर्स की डेफिनेशन में वो चीज़ आ गई है, आउट ऑफ आर्टिकल 21 आई एम टॉकिंग अबाउट। Now, the next question is talking about the constitutional provision under which legislative council, यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 171 की प्राइमरीली बात हुई है। कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही प्यारे तरीके से आई विल लाइक टू टेल यू, राइट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो DRSP जो बोलते हैं इनको शॉर्ट में, ये कमेटीज क्या होती है? 1993 में इस वाले कॉन्सेप्ट को हमने बर्थ दिया। आज की डेट में 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? जब ये नहीं थी तो कैसे काम चलता था, और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी लाने की, और आज की डेट में इनके नेगेटिव्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, और रिसेंट में कहाँ कहाँ पे इन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जो इनके सिग्निफिकेंस को अपने आप में एक्सियोमेटिक स्पीक करता है। So we will like to understand here, and also we will like to cover the bridge for the next month development which will be happening after 16th of September. समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन कवर नहीं किए जो लास्ट ईयर से रिपीट हुए हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल जहाँ जहाँ पे मुझे ध्यान में आता जाएगा। पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में था। क्वेश्चन क्या कहता है? दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड इन on its essential facets, explain the doctrine of constitutional morality with the help of the relevant judicial decisions. इसमें कुछ कंटेंट है जो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भी मिल जाएंगे, मैं भी बता दूंगा, बट बिफोर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है? इफ आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू अ रिक्शा पुलर और अ फार्मर, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? यदि आपसे कल के लिए ये भी पूछ लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन और मोरालिटी में क्या अंतर होता है, तो मोरालिटी को आप क्या बताओगे? नेचुरल, गॉड गिफ्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या बताओगे? बेसिकली मोरालिटी एंड एथिक्स रिलेटेड एंड ड्रिवन लॉस मेड बाय ह्यूमन, सो नॉट गॉड मेड थिंग, सो इट इज आर्टिफिशियल।
right? But it is purely natural. It has evolved over a period of time. But constitution is something which has been artificially created by the human, and every nation constitution is not similar. It is different. But when we talk about morality, it is by and large, with some of the exceptions given, is similar. मोरालिटी आज जैसे 15 अगस्त है, हम अपने फ्लैग कोड की भी बात करें, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आपने कभी सोचा है, एक मोरालिटी की बात करता हूं कि यहाँ पे हमारी मोरालिटी कहाँ काउंट हो रही है, राइट? आज के दिन को ही लेके यूएस के अंदर व्हाइट हाउस फ्लोर इज ड्रॉन विद द फ्लैग, यूएस फ्लैग। बट यहाँ पर ऐसा करना एक बहुत बड़ा इंसल्ट होगा नेशनल फ्लैग के लिए। इट इज एन ऑफेंस, नहीं कर सकते हैं ऐसा। बट इन यूएस even the undergarments are having the flag impression on them. There is no problem. But here in India, over the waist we can use on the chest when we are wearing t-shirt or shirt, यहाँ पर हम लगा सकते हैं, but below waist हम उस फ्लैग को यूज नहीं कर सकते। इट इज एन इंसल्ट। तो क्या वो लोग गलत हैं अपने फ्लैग कोड को लेकर, फ्लैग का जो यूज है उसके मैनर को लेकर? सो ये एक बात है, ये एक्सेप्शन बन जाता है। वो ये समझते हैं कि जैसे अर्थ है, मदर अर्थ, इट इज जस्ट नरिशिंग अस, सेम वे द फ्लैग इज ऑल्सो नरिशिंग अस। बट हेयर इन इंडिया, जैसे यहाँ पे पगड़ी होती है, पगड़ी की आन बान शान जो है वो उसके सर से कोई ना उतार पाए। एक मूवी भी बनी है अक्षय कुमार जी, उसमें है कि पगड़ी की कितनी कीमत हो सकती है। तो ऐसे ही किसी की कैप है या पगड़ी है, जो भी है, तो वो ऐसे ही फ्लैग की भी शान है कि वो एक लेवल से नीचे नहीं आ सकता। तो कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन जो थीम है वो एक है, दैट वी आर रेस्पेक्टिंग। सो उनकी रीजनिंग अलग है, उनके यूज को लेकर हमारी रीजनिंग थोड़ी सी अलग बन जाती है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको दूसरे सेंसिटिव इश्यूज में कहाँ देखने को मिल सकती है? आपको वुमेन रिलेटेड चीजों को देखने में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्ट एंड डिसेंसी क्वेश्चन आता है। देन चिल्ड्रन को लेकर ये बात आ सकती है। देन उसके अलावा जब हम सेंसिटिव इश्यूज की बात करते हैं, जैसे एलजीबीटी, राइट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी काउंट होती है। देन इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, that do we need to have the brotherlyhoodness in us or not? It is driven by preamble also, because fraternity is also there. And when we talk about Indian ethos, the cultural ethos, the culture is to be protected by law. Answer is yes. What is dress code? As an IAS, I'm talking about constitutional morality. As an IAS, if I am going in my office with half knicker and just sleeveless t-shirt, will it be a becoming dress for me in office? Answer is just negative. But in corporate, in private sector, it will not be taken that heavily. मतलब उतने ऑफेंसिव तरीके से उस चीज को नहीं देखा जाएगा। बट हेयर द ड्रेस कोड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कोड ऑफ कंडक्ट। ये केवल आपको समझाने के लिए है। एंड इसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में इंक्लूड होता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली होता क्या है? जब आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, आपके जो जूनियर्स हैं, जब उनकी एज ज़्यादा होती है, क्लर्क होते हैं, पियोन होते हैं, 60 ईयर्स 65 ईयर्स, एंड आप 25 ईयर्स या 23 ईयर्स में आप प्रोबेशन के बाद में अटैचमेंट में ही पहुंचते हैं, वहाँ पे यदि आप उन्हें नाम से बुलाते हैं तो भी कोई इसका लॉ नहीं है, राइट? लेकिन एक कन्वेंशन डेवलप हो चुकी है कि आप उन्हें किसी एक रेस्पेक्टेबल नेम से बुलाएंगे, एंड इट इज जस्ट कंफर्टिंग देम, इट इज comforting you, it is comforting overall ecology of the office. So this is something which is very, very important here,
Now, returning back to the constitutional morality, something you might have heard about the conventions. These conventions have been developed because the forefathers of the constitution making phase could not visualize the future development. कोई भी पर्सन एक मोर और लेस फ्रेम तैयार कर सकता है लॉ का, लेकिन सारे के सारे डेवलपमेंट को जो फ्यूचर में होंगे उनको फोर्स ही नहीं कर सकता. आज की डेट में हम कन्वेंशंस को कंपल्सरीली फॉलो कर सकते हैं और करते हैं. और बेसिकली व्हाट इज देयर दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशन is providing the dry skeleton, bone structure, then the conventions and morality is providing what is called as blood and flesh. To lubricate that skeleton structure. And without this, entire constitutional machinery, entire Indian democracy will be going haywire. मतलब सब खराब हो जाएगा. जैसे कन्वेंशन के बारे में आपको पता है कि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफीट लेने के बाद में प्रेजेंट गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को वहां पर रिजाइन करना है पार्लियामेंट में, लेकिन करते हैं फिर भी. राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज कन्वेंशनली ड्रिवन. ऐसे ही जब मोरलिटी की बात आती है तो this moral fabric is used by the court in deciding the sensitive issues. Say for example, Sabrimala case. Sabrimala case में menstruating women can enter the temple premises or not. So now law is not having that thing in it. It has not visualized that thing. The court has to see it, and court is seeing it from case to case. Another thing is privacy. अब ये प्राइवेसी इन्वेजन कितनी माइन्यूट चीजों में हो सकता है ये हमें देखना है. राइट टू बी फॉरगॉटन भी उसमें छुपा हुआ है. अभी एक हफ्ते पहले ही क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट पास हुआ है. अब उसमें 70 इयर्स तक के लिए वी हैव टू कीप द पर्सन्स डाटा जो ऑफेंडर रहा है 70 इयर्स तक के लिए. अभी भी अपने आप में क्वेश्चन है कि कितने दिन तक रख सकते हैं. लेकिन यदि वो पर्सन निकल गया, अपनी सेंटेंस को पूरा कर लिया या खत्म हो गया, क्या उसके फैमिली वाले अंडर राइट टू बी फॉरगॉटन के अंडर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या उस डाटा को डिलीट कर दीजिए? मींस आपके थंब इंप्रेशन, पाम, इवन बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लाइक आपकी राइटिंग, वॉइस, वी कैन नॉट. राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन. देन मैरिटल रेप. Marital rape is another issue which is coming under the morality, because the marriages are made in heavens, and marriage is a kind of license to further your generation. आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, बेबीज को पैदा करने के लिए marriage is the accepted institution, right? But here comes the sex in it, and another thing has been given birth, what is called as marital rape as an offense. So we have to analyze it, that marriages, the objective of this institution is only to further the generation or something else in it, connected to what is called as physical needs, connected to the need hierarchy of Maslow, the first need. ये सारी की सारी बातें समझने वाली है. कोर्ट मनुस्मृति को भी इवन इंटरप्रेट करता है कहीं कहीं पर जब उसे जरूरत पड़ती है. तो एक ऐसा केस आया था जब राम मंदिर की इशू बात बनी थी. रिलीजियस मैटर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. नाउ if I need to talk about one thing, that constitutional morality, एक छोटा सा एग्जाम्पल है that आपका प्रीलिम्स एग्जाम, बिकॉज इन क्लास I just give those examples जो किताबों में एग्जिस्ट नहीं करते, बट समझ में आ जाती है बात पूरी.
आप कमेंट में जरूर बताना कि यदि ऐसी चीजें यूजफुल हों विद पेडागोगिकल टच। प्रीलिम्स आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, और उसी नाइट को माता जागरण पूरी रात भर चलता है, होल नाइट होना है। आपका घर है, आप रात को नहीं सोए तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो सकती है, क्योंकि उस 2 घंटे में स्पार्क क्रिएट करना होता है, एक स्पीड से चलना होता है। बहुत जरूरी है उस वक्त, उस नाइट में सोना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, ये एक भी एक अपने आप में दिक्कत बन जाती है। माता जागरण है, आप भी उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, राइट? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे, या उनके रिलीजियस फीलिंग्स को आप रेस्पेक्ट करेंगे और एक टैसिट साइलेंस लेके चलेंगे? हालांकि माता जागरण खुले में करना परमिटेड नहीं है लाउड स्पीकर के यूज के तहत, वो एक अंदर वाले घर में ही हो सकता है जहां पे कुछ लोग इकट्ठे हैं और वो अपने एक्सेप्टेंस से ऐसा करना चाहते हैं, बट बाहर के लोग डिस्टर्ब नहीं है, तब हो सकता है ये, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो हियर इफ यू आर थिंकिंग दैट यदि मैंने माता जागरण रुकवा दिया तो अगले दिन माता रानी मुझे पाप देंगे, तो फिर सब कुछ आप भूल जाओगे, फिर तो आपको सिक्का लेके जाना पड़ेगा, हेड या टेल, राइट? नाउ यदि नहीं रुकवाते हो, और यदि नहीं रुकवाते हो तो फिर आपकी नींद खराब होती है, और वो एक प्रैक्टिकल रीजन बन जाता है कि आपका एग्जाम शायद खराब हो जाए। ओके, तो ये एक डिलेमा वाली सिचुएशन है। सो दिस प्रॉब्लम इज देयर इन द केसेस हर्ड बाय द जुडिशरी। नाउ यदि मैं कंटेंट की तरफ जाने की कोशिश करूं, मैं इधर की तरफ बाद में आऊंगा, कंटेंट की तरफ जाने की कोशिश करूं तो जुडिशरी ने कृष्णा मूर्ति केस 2015 में, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द केसेस, राइट, has accepted that constitutional morality is the pillar of good governance. Why? Because the prevalence of genuine orderliness, positive propriety, dedicated discipline and sanguine sanctity. Sanguine का मतलब होता है यहाँ पे ब्लडली रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनिकली रिलेटेड, मतलब आप अलग नहीं कर सकते हो। जैसे दूध के अंदर में चीनी मिल गई है तो बिल्कुल ऑर्गेनिकली मिक्स्ड हो गया है वो। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, मोरल फैब्रिक्स आर इंक्लूडेड इन इट, राइट? व्हाई? द एग्जांपल ऑफ इट कैन बी फाउंड इन द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1), जिसमें ए से लेके बी सी डी ई एफ जी तक के राइट्स हैं, if फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए तो। उसके अंदर आर्टिकल 19(1)(2) में 2 से लेके 5 तक हम लोग बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की। रेस्ट्रिक्शंस के अंदर में हमने वर्ड यूज किया है डिसेंसी, हमने यूज किया हुआ है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, हमने यूज किया हुआ है मोरालिटी, मींस डिसेंसी का पार्ट सबसेट। तो यहां पर ये जो रीजनेबलनेस है या डिसेंसी है, बड़े सब्जेक्टिव लोडेड वर्ड्स हैं, जहां पे जुडिशरी को बहुत माइन्यूटली चीजों को देखना होता है, केस को देखना होता है। नाउ अनदर केस, केएस पुत्तास्वामी केस, यहां पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ये बोला है दैट जितने भी कोर्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को, जब even if the executive action if it is unconstitutional, means लॉ अच्छा है, एग्जीक्यूटिव ने उसको प्रोसेस गलत, जो रॉन्ग प्रोसेस है उसके तहत उस चीज को अप्लाई कर दिया। से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करना अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से उसको आपने एग्जीक्यूट किया है वो हो सकता है गलत हो। आई कैन रिकॉल 1970s टाइम, दैट टाइम आई वाज आल्सो नॉट देयर, राइट? वहां पर जो नसबंदी होती थी, वेस्कोटॉमी बोलते हैं इंग्लिश में, जबरदस्ती जो रिक्शे वाला है उसको भी मतलब जबरदस्ती नसबंदी करा दी है। कुछ तो जो शादीशुदा लोग नहीं है उनकी भी नसबंदी हो गई, जो एकदम बूढ़े लोग हैं उनकी नसबंदी हो गई, केवल टारगेट्स को पूरा करने के लिए। कुछ लोगों को बोल दिया इफ द टारगेट्स आर फुलफिल्ड
then promotion will be there. So this is a wrong process. The process which is followed in China to control the population is also not accepted. यहाँ इंडिया में तो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, like the forceful abortions in India it is not possible, but in China, being a communist country, they are able to enforce it, right? Then another case is government of NCT Delhi case. यहाँ पर कोर्ट ने अगेन बोला that constitutional morality is second basic structure doctrine. Basic structure is connected to Keshavananda Bharati case, and in this question यदि आप केशवानंदा भारती केस को भी मेंशन करना चाहो कि वो वन ऑफ द फर्स्ट केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में कोर्ट ने इनडायरेक्टली बात की थी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ केशवानंद भारती केस क्या है, उसके लिए मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा बनाया हुआ है. आप यदि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी. देन ये जो सबरी वाला केस है इसको इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है. The Supreme Court bypassed the doctrine of essentiality. Doctrine of essentiality is basically related to that minimum core activities which are important for a religion, right? Say for example, मंदिर जाना और वहां पे प्रे करना एक मिनिमम एसेंशियलिटी हो सकती है, लेकिन मैं लाउड स्पीकर लगा के सारे लोगों को बताऊं कि मैं प्रे कर रहा हूं, वो एसेंशियल पार्ट नहीं है. आप प्रे करो अपने मन में, आप जितनी आवाज हल्की फुल्की जो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करे आप उसे यूज करो, दैट विल बी एक्सेप्टेड, बट नॉट द लाउड स्पीकर कि आपने लाउड स्पीकर लगा के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एसेंशियलिटी. सो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी को बेसिकली बाईपास किया, एंड जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स हैं उसकी इशू इसके अंदर में हर्ड हुई थी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड रखा गया कि ऊपर जो ऊपर वाले हैं, जो गॉड हैं, उनको बेसिकली साइकोलॉजिकल फैब्रिक्स ऑफ द पर्सन से जरूरत होता है, न कि वो गॉड जो इस चीज में बिलीव करता था कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है वो मेरे पास में नहीं आएंगी तो मैं आज भी उस आस्था को फॉलो करूं, राइट? नाउ दीज ऑल थिंग्स यू कैन मेंशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्टली कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो आप डीपीएसपी के बारे में बता सकते हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, राइट? देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हम लोग ये देखना चाहें तो हमारे आर्टिकल 47 में भी मिलता है. आर्टिकल 47 के अंदर में आप काउ स्लॉटर्स को बिल्कुल एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं. काउ क्यों, दूसरे एनिमल क्यों नहीं? बेसिकली यहाँ पे मोरालिटी के अलावा एक प्रैक्टिकलनेस भी है कि यूजफुलनेस ऑफ द एनिमल इज टू बी काउंटेड. गाय हमारी माता है, राइट? दैट इज अनदर थिंग. बचपन में तो हम लोग कहते थे कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बट इन सीरियस सेंस काउ स्लॉटर इज टू बी स्टॉप्ड, बिकॉज नॉनवेज खाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं. यदि आपको नॉनवेज खाना है, आप नहीं रह पाते हो उसके बिना, तो फिश खाओ. फिश तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं. चिकन खाओ, राइट? गोट, बकरी एंड गाय. एसेंशियलिटी इनकी आप देखिए कि इनकी यूजफुलनेस कितनी ज़्यादा है. एक गाय से उसके लाइफ स्पैन में ऑक्सीजन निकलते हैं. कितने एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो ट्रैक्टर के कॉस्ट को एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बैल है, दे कैन टिल देयर फील्ड्स, राइट? वहीं से खेती होती है. मिल्क इज अनदर सोर्स, काउ डंग इज अनदर सोर्स, राइट? बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, राइट? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू अबाउट द फ्रेटर्निटी, ब्रदरलीहुडनेस के साथ, बट हमें अपने नेशनल इंसिग्निया को रेस्पेक्ट करना है. जैसे अभी मैंने 15 अगस्त के दिन का आपको एग्जांपल दिया, फ्लैग कोड का एग्जांपल दिया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं. देन वुमेन को रेस्पेक्ट करना है,
तो ईव टीजिंग इसके अंदर में आती है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट बन जाएगा, राइट। फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 का तो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसमें आर्टिकल 21 का एग्जांपल बनता है, राइट टू लाइफ। देन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के एग्जांपल बनते हैं, स्पेशली 25, राइट। रिलीजियस राइट्स का एक यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिस आप उसे कैसे करते हैं, प्रोफेस कैसे करते हैं, राइट। जब आर्टिकल 25 के बारे में कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज क्लास में ही मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ओके। देन प्रियम्बल के अंदर में वैल्यूज आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, राइट। सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू इंश्योर व्हाट इज कॉल्ड एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एडहेयर किए बिना प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, राइट। नाउ वी विल बी स्विचिंग टू अनदर क्वेश्चन बिकॉज हमारे टाइम बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। नाउ the next question is about the desirability of greater representation to the women in higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. बेसिकली जो जेंडर डिस्पैरिटी है, this is not confining itself to this issue asked here in the judiciary, राइट, बट इट्स एवरीवेयर। यहां पर बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग अपने एक्सप्रेशन के ऊपर, जैसा कि एसे की थीम होती है, उसके ऊपर हम गेम प्ले करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल आपके लिए कुछ जीके भी जरूरी है कि कैसे कैसे परसेंटेज चलती है। लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे एक थीम होगी जैसा इस क्वेश्चन की डिमांड बनती है। बेसिकली SDGs आर टॉकिंग अबाउट टू मीन्स जेंडर डिस्पैरिटी को हमें दूर करना है, SDG का मेन थीम है और इंडिया इज सिग्नेटरी टू इट, ये हम लोग को इंक्लूड करना है। देन इसके अलावा यदि मैं आपको टोटल एक ओवरव्यू देना चाहूँ कि हमारे इंडिया में आज की डेट में क्या है, देयर हैज नेवर बीन अ वुमेन चीफ जस्टिस इन इंडिया, राइट। एंड 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, 1989 लगभग आप 39 इयर्स के बाद में फातिमा जी हमारे यहाँ पे जज बन के दिखाई दी। आज की डेट में भी 256 सुप्रीम कोर्ट जजेस 71 इयर्स में, ओनली 11 और परसेंटेज में देखें 4.2 हैव बीन वुमेन, राइट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज मोर इन लोअर जुडिशरी। ऑफ कोर्स जुडिशियल एग्जाम होता है, जाते हैं, लेकिन वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाते ड्यू टू रिक्रूटमेंट थ्रू एन ओपन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट इन हायर जुडिशरी बिकॉज ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, जो बेसिकली एक और फ्लॉ है, मतलब वीकनेस है, या फिर एक कहें सिस्टम ही ऐसा है कि जो लॉयर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉलेजियम के थ्रू with the minimum experience practicing as a lawyer in high court and supreme court, they are appointed as judge and फिर उनके promotions बहुत जल्दी फास्ट होते हैं। बट जो ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं, दे आर रिलेटिवली कूल, काम एंड उनके प्रमोशन स्लो होते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेंस है अभी तक, दूसरा उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकल पाया है। देन 25 हाई कोर्ट्स आज की डेट में हम बात करें तो चीफ जस्टिस हिमा कोहली जी, राइट, तेलंगाना हाई कोर्ट में ही केवल दिखाई देती हैं एज अ चीफ जस्टिस, नहीं तो ओनली 73 आउट ऑफ 661 हाई कोर्ट जजेस which is roughly 11.04% are women. In 5 हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक भी सिंगल जज यहाँ पर नहीं है। ये थोड़ा सा आपके माइंड को सेंसिटाइज करना है, थोड़ा बहुत इसमें से याद रह जाएगा आपको। जरूरी नहीं है कि हम इन सारे के सारे फैक्ट्स को अपने आंसर लिखने में यूज करें, जस्ट आपको बताने के लिए है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था एसडीजी का, that SDG 5 and SDG 16
in particular addresses the global responsibility of having gender equality and women representation in public institution, including the judiciary. These facts you have to use so that the examiner is also having the taste of the content and the gravy, right? Pith and substance दोनों का एक बैलेंस आंसर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now we can come to another question. How have the recommendation of 14th Finance Commission enabled the state to improve their fiscal position? Right, Article 280 के अंडर में you all know that President every 5th year appoints Finance Commission. उनकी एक प्रिंसिपल एक फ्रेम बना हुआ है कि उनको वो तो काम करना ही है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया क्यों? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज ऑफ द राइट टू प्राइवेसी issue was grilled because of the criminal identification bill introduced way back in March, right? Then Sabrimala issue, then the religious fabrics were disturbed. That is why that question was asked. Why this question is there? 14th Finance Commission, because इस बार 32% से 42% जो शेयर होता है वो स्टेट की तरफ कर दिया है. स्टेट को ज़्यादा पैसे खर्च करने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में स्टेट को जो डिस्क्रेशन है जो हमें खर्च करना है उसमें सेंटर की बेसिकली मनमानी ना हो, ऐसा फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है. इसलिए ये क्वेश्चन निकल के आया है. एंड आई हैव सम कंटेंट टू शेयर विद द divisible pool of taxes from 32 to 40%. ये 10% का एनहेंसमेंट है जो अपने आप में बहुत बड़ा है. लेकिन यदि बढ़ा भी दिया आपने तो क्या आपके पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि उसको आप खर्च कर पाए? उसके लिए भी फाइनेंस कमीशन ने ये बोला है सेंटर को दैट आपको कंडीशनल ग्रांटेड एड को घटाना पड़ेगा. कंडीशनल ग्रांटेड एड का मतलब होता है दैट यू कैन spend this money for this particular purpose only and with these conditions. Okay, but it is not open-ended thing. Like this is open-ended to an extent. Now it has recommended 8 centrally sponsored scheme. ये centrally sectoral scheme नहीं है, centrally sponsored scheme है जिसमें कि state और center जैसे कि 50-50 भी हो सकता है, 75:25 भी हो सकता है वो रेशो. उन दोनों के कंट्रीब्यूशन से कोई भी स्कीम आगे चलती है. तो नाउ इट इज टू बी डीलिंक्ड जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द सेंटर. दस स्टेट शेयरिंग हायर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली द स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. ओके, बिकॉज सेम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वहाँ पे, और पॉलिटिकल पार्टी है भी तो वो अपने आप में एक अलग ही नेशन को लेके चलती है, नेशनल थॉट लेके चलती है. ऑटोनॉमी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. नाउ स्टेट गॉट मच ऑटोनॉमी इन डिसाइडिंग देयर एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी. दिस इज इन द स्पिरिट ऑफ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. नाउ दिस फिस्कल फेडरलिज्म इज नॉट ओनली कन्फाइनिंग इटसेल्फ टू आर्टिकल 280 but also to the budget, the annual financial statement, Article 112, right? To the contingency fund of India, to the public account of India, to the PM and CM relief fund, to the corona time appointed fund. Okay, सारी की सारी चीजें फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर में काउंट होती हैं. Then last but not the least, that given due consideration to the fiscal federalism framework in India by devolving a larger amount to local government. Now local government के अंडर में directly from center to municipality and to panchayat there are schemes, money will be allocated. This is to the grassroots democracy, otherwise grass will be without root. Under this theme, center has linked itself to the municipality and to the villages. And one
substantial component is going to digitally connecting the panchayat and municipality to it. क्योंकि सीसीटीवी कैमरा होगा, एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अच्छी होगी, तो ऑडिट, सोशल ऑडिट जो ग्राम सभा करती है उसकी रिपोर्ट सेंटर तक पहुंचेगी, तभी विलेज का डेवलपमेंट हो पाएगा. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द फाइनेंस कमीशन recommendations. Now I hope you have understood, and it is a close-ended question to an extent, but I am also suggesting that जब भी close-ended question आता है जहाँ पे आपको facts ज़्यादा पता है, facts के ऊपर आप पूरा का पूरा गेम प्ले ना करके अपने expressions, analytical skills, पैराग्राफिक अप्रोच पर आने की जरूर कोशिश करो. ये डिमांड होती है, यूपीएससी का टेस्ट ही ऐसा है, ये आज का डेवलप नहीं है, ये जब से एग्जिस्ट कर रहा है यूपीएससी तब से ग्रेवी जो है ना वो बड़ी टेस्टी होनी चाहिए, और ग्रेवी आती है आपके एनालिटिकल एक्सप्रेशन से, एंड उसमें कंटेंट भी कहीं ना कहीं शामिल होने चाहिए, बट इतने ज़्यादा कंटेंट ना हो कि ऐसा लगे कि स्ट्रेस पैदा हो गया है पढ़ने वाले को. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. नाउ मैंने आपको ये बताया था कि ये मोटे पेट का आदमी है, इसको पनीर खाना है, और ये हम हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं. राइट. शेयरिंग में कमरा ले रखा है, टिफिन में खाना है तो केवल दाल चावल खा लेते हैं क्योंकि रोटी देखने में भी अच्छी नहीं लगती है ना. तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करेगा? देखो, पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के ये पार्लियामेंट बनती है. दिस इज द पार्लियामेंट्री टेम्पल, डेमोक्रेटिक टेम्पल. अब एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर में आज की डेट में 543 एमपीज, यहाँ पे 245. राइट. इनके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि ये तो बाहर जाके फील्ड में काम भी करते हैं, और इन 543 एंड 245 को मिला के क्या बनती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव. तो इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं? आपने सुना होगा कि बजट जब आता है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है. कोई भी लॉ बनने से पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है जिसको लोकसभा में पास करना होता है, जिसको राज्यसभा में भी पास करना होता है. उसके बाद प्रेसिडेंट के पास में भी वीटो पावर है, एक्सेंट ना देके वो वीटो भी यूज कर सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट को अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. तो हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कट मोशंस, टोकन कट होता है, इकोनॉमी कट होता है, पॉलिसी कट होता है. पूरा का पूरा पॉलिसी जो प्रपोज की है एग्जीक्यूटिव ने वो हम डिसअप्रूव कर सकते हैं. बजट के अंदर सब हेड्स होते हैं. इसके अंदर ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. इट इज अनदर इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. राइट. देन इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट में तो हम लास्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात कर जाएंगे. वो भी अपने आप में एक फियर कास्ट करता है एग्जीक्यूटिव के माइंड के ऊपर कि भाई कोई मैं यदि रेड हैंडेड पकड़ा गया, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो आई हैव टू गिव रेजिग्नेशन, देयर इज नो अदर ऑप्शन. नाउ पार्लियामेंट को यदि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर के अंदर में आपको पता है कि स्टार मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं. स्टार मार्क का मतलब है क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, एंड अनस्टार्ड मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है. स्टार्ड मार्क क्वेश्चन के अंदर में क्या है? बेसिकली आपको जो रिप्लाईज देने हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर रिप्लाई देना है. टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने का. जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट जो स्पीचेस होती हैं, जो वायरल होती हैं, राइट, चाहे वो स्मृति ईरानी जी की हो या मोदी जी की हो, ये स्टार्ड मार्क क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे रहे हैं जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग पॉसिबल है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन की वजह से है. अनस्टार्ड मार्क क्वेश्चन के लिए आपको रिटन रिप्लाई देना होता है, तो उसमें आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते हो.
उससे अलावा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा वो भी आपको रिटन में ही देना है, तो एग्जीक्यूटिव को टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने का। सो बेसिकली क्वेश्चन आवर इज द मेन थिंग जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही होती है, राइट। देन इवन एडजमेंट मोशन इज ऑल्सो देयर। एडजमेंट मोशन और एडजमेंट साइने डाई के अंदर में क्या होता है, अपोजिशन बहुत ज्यादा यू एंड क्राई करने लगती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, द स्पीकर एंड द चेयरपर्सन टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। तो ये बार बार जब करते हैं तो बेसिकली इट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर उसको फंक्शनैलिटी को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, और टाइम वेस्ट होता है, लोगों का जो टैक्स मनी है वो वेस्ट होता है जो कि पार्लियामेंट को कंडक्ट कराने में खर्च होता है। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। देन डिस्कशन, जब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चीज डिस्कस होती है, इवन वॉइस वोट से भी पास होती है, तो भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का फियर कास्ट होता है, राइट। क्योंकि आज की डेट में तो सीसीटीवी मौजूद है, एलएसटीवी आरएसटीवी सब कुछ है मौजूद, लोग देख पाते हैं। कभी कभी तो ब्लैकआउट ही हो जाता है, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहता है, क्योंकि जितने टेक्निकल तरीके से वहां पे सीसीटीवी कवरेज रहता है, ब्लैकआउट हो ही नहीं सकता। जेनसेट अवेलेबल है, लाइट कैसे भी करके, मतलब 1 सेकंड का भी ब्लैकआउट नहीं हो सकता, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द accountability over the executive. Then no confidence motion in last, the constitutional mechanism in last has to be cited. What all those? We can say the confidence motion and no confidence motion. Confidence motion is basically indirectly passed when we have passed the budget, when president address has been passed with what is called as vote of thanks. यदि कोई भी गवर्नमेंट मींस एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय पीएम, वोट ऑफ थैंक्स को पास नहीं करा पाई जो प्रेसिडेंट एड्रेस के लिए है, इट इज अंडरस्टूड दैट गवर्नमेंट इज नॉट एंजॉइंग द मेजोरिटी, और उन्हें प्रूव करनी पड़ेगी मेजोरिटी इन द रीजनेबल टाइम गिवन बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर फॉर दिस पर्पस। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन, एंड व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, because the decorum has gone down in the recent years, and we have seen very well the decent behavior of our parliamentarians. Even when Meera Kumarji was there, her mic was broken, black ink was thrown. So, and people, the parliamentarian, the legislators were walking in the troop, means there is a area. So say for example, यहाँ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक थोड़ा डिप्रेशनल एरिया होता है, यहाँ पे खड़े होके आप स्पीकर को बोल सकते हैं। सो वॉकिंग इनटू द वेल मीन्स थोड़ा सा डिप्रेशनल एरिया है, डाउन एरिया है हाइट वाइज, तो इस एरिया में जाके आप बोल सकते हो, उनको सामने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेजिटिमेट प्रोटेस्ट। बट ऐसा होता है कि आपको अपने सीट पे खड़े होके ही बोलना होता है। इमेजिन इफ पेपर वेट्स आर ऑल्सो देयर, ये तो इतने डिसेंट लोग हैं कि एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगेंगे। केरला असेंबली में वंस द चेयर्स वर थ्रोन ऑन ईच अदर। सो आई थिंक this question has been covered. Now we can go for the next question. The jurisdiction of CBI regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states. Second part of the question is, however, the power of state to withhold consent to CBI is not absolute. Explain with the special reference to the फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। 3 पार्ट हैं इसके। यहां पर मैं यदि बताना चाहूं कि एक तरफ सीबीआई, एक तरफ सेंटर एंड एक तरफ स्टेट। स्टेट के पास पुलिस सब्जेक्ट है एंड सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत में हमने बनाया हुआ है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर में डेफिनेटली
स्टेट के पास पावर है कि अपने पास में वो इन सब्जेक्ट को रखे और एग्जीक्यूट करे, और सीबीआई यदि यहाँ पर आती है, सेंटर भी यदि भेजता है, तो इन प्रिंसिपल स्टेट का अप्रूवल होना चाहिए. Many states, including West Bengal, has withdrawn the approval support to the CBI. What does it mean? That CBI will not be allowed. अब कोई एक स्टेट है, उनका एक डीजीपी है जो आईपीएस सर्विस से होता है. हो सकता है सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो इन डीजीपी से जूनियर हो, लेकिन भेजा किसने है? सेंटर ने है. स्टेट के अंदर जाके काम करना है तो वेरी वेल चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे डीजीपी इनको रोकेगा. दिस वाज द टसल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, अभी आप ये सोचो कि कोई भी छोटा सा स्टेट या बड़ा स्टेट पूरे के पूरे सेंटर को जो दूसरे स्टेट्स को संभाल रहा है उसके इंटरेस्ट से बड़ा तो नहीं हो सकता. इट विल बी कॉल्ड एज हाईजैकिंग द नेशनल इंटरेस्ट because of the relatively smaller interest. So chief minister versus prime minister. So prime minister has larger responsibilities. Okay. So that is why Delhi cannot be given statehood, because यहाँ पर फिर डीजीपी बनेंगे, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में होंगे. आज की डेट में बिकॉज ऑफ एलजी एंड द काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी आर हैविंग, पुलिस इज अंडर द सेंटर, बिकॉज दिल्ली इज हैविंग more than 80% of the property belonging to center, right? And this is very, very important. It is a democratic capital. Now, if we look at the content part, that Supreme Court ने ये question basically आया क्यों है? Because of this observance that it has expressed concern over the submission by the CBI that since 2018, around 150 requests for sanction to investigate have been pending with 8 states of government that have withdrawn the consent to the agency. Withdrawn of the consent का means क्या है? यहाँ पे मैंने इसको elaborate किया हुआ है that any fresh case involving the official of the central government or a private person in the state without the consent of state government. अब दीदी की बात यहाँ पे यदि करोगे तो दीदी तो कुछ भी हो जाती है, right? The West Bengal chief minister I am talking about. This is a matter of concern that states cannot hijack the larger interest connected to the nation. Politics है, but still the mechanism is to be there, the federal character is to survive, and it is not desirable position because judiciary has also referred this case to the Supreme Court, and it has means the judge name is there, SK Kaul, and referred the matter to Chief Justice of India, N.V. Ramanna sir, that it is a matter of concern. It has to be dealt with seriously. Now, CBI की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए मैंने यहाँ पे NIA के कंपैरिजन करते हुए पॉइंट डाला है दैट हमारे यहाँ पे जो NIA बनी है, जो यूएस के अंदर में FBI होती है, CIA होती है, जिनके पास ज़्यादा पावर होती है. जब हमारे यहाँ पे मुंबई के अंदर में अटैक हुआ था, ये अजमल कसाब रिलेटेड थिंग, तब एक रियलाइज़ हुआ था कि हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो क्विक एक्ट कर पाए, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स उसका फास्ट हो और पावर्स पूरी हो, राइट? विच इज़ गवर्न्ड बाय द NIA एक्ट 2008, हैज़ ज्यूरिसडिक्शन अक्रॉस द कंट्री. वहाँ पर NIA के केस में किसी भी स्टेट से अप्रूवल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NIA इज रूल्ड अंडर द कॉन्सेप्ट व्हाट डिफेंस हैज़. डिफेंस को किसी भी स्टेट में जाने के लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, राइट? किसी भी पुलिस वाले की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है दैट हम आ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, नॉट द इंट्रा स्टेट सिक्योरिटी, which is part and parcel of the primarily police people, and mandatorily obtain the consent of the state in case of CBI, because CBI is related to policing, which is a state list subject. That is why the state police DGP is reporting to the chief minister, and if chief minister is saying कि prime minister को stop किया जाए, DGP को वो चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि उनका political master chief minister है, and matter will be going to the court. Court will be giving its own ruling. वैसे ऐसा होता नहीं है. Now 8 states
have currently withdrawn consent to CBI, इनके नाम दिए हुए हैं, and वेस्ट बंगाल was the one जहां पर कैलकाटा हाई कोर्ट ने उसको कंसीडर किया हुआ है और एक पहले का जजमेंट दिया हुआ है कि यदि illegal coal mining, cattle smuggling being investigated by the CBI, central agency cannot be stopped from probing an employee of the central government in another state. कि कोई भी एम्प्लॉई जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के अंदर में काम कर रहा है, वो केवल स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, इसलिए सीबीआई उसे प्रूव नहीं करेगी, और that includes the sensitive case related to the cattle smuggling, related to the illegal coal mining, related to the other security scenario. State cannot stop it. This is the correct observation of the court. Then in another case, Vinay Mishra versus CBI, Calcutta High Court ruled July last month itself that the corruption cases must be treated equally across the country, and a central government employee could not be distinguished if he or she is working in the state. This is also in line with the judgment or the observation given by the court in the previous line. It is one and the same thing, and these are the issues, looking small but very big in effect. The High Court has also said that withdrawal of consent would apply in cases where only employee of the state government were involved. अब आप यूपीएससी से रिक्रूटमेंट के थ्रू सेलेक्ट हुए हो एंड आप स्टेट पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट हुए हो, दोनों ऑफिशियल्स में अंतर है, एंड उसके बाद भी जब आपका प्रमोशन होके आप फुल फ्लेजेडली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हो, आपका डेपुटेशन दूसरे स्टेट में हो जाते हैं, तब आप पूरे उस स्टेट के नहीं रहते। लेकिन वहाँ पर भी आप स्टेट पीसीएस में हो और आप ऐसे केस में इन्वॉल्व हो जिसके फैब्रिक सेंटर से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर भी स्टेट नहीं रोक सकती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन द कोर्ट, एंड दिस गिव्स द मोटिवेशन टू यूपीएससी टू फ्रेम द क्वेश्चन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट, नाउ before going to the question after this, caged parrot, right, पिंजड़े का तोता जो एक एक्सप्रेशन है, वो किसके लिए यूज करते हैं हम? सीबीआई के लिए यूज करते हैं। पिंजरे का तोता क्यों? ये तोता वही बोलता है जो मालिक कहता है। मालिक कौन है? सीबीआई का सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को हराश करने के लिए, इलेक्शन रिलेटेड थिंग के लिए, जब भी इलेक्शन पास आते हैं तो ऐसे ऐसे केसेस को खुलवा के उनके पास रेड करवाना, उन्हें हराश करवाना, ये गेम चलता है। यदि वो सरकार जो अभी हराश हो रही है वो भी यदि पावर में होती तो वो भी करती, एंड इट इज बट नेचुरल काइंड ऑफ नॉर्मल गोइंग इन द डेमोक्रेसी एंड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमारे पास नया फॉर्डर आता रहता है न्यूज़पेपर के थ्रू, इनके ऊपर ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट? Now the next question, that though the HRC, Human Rights Commission, have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful, right? Analyzing their structural and practical limitations suggest remedial measure। 3 इसके पार्ट है। एक तो हमें ये बताना है कि भाई जो पावरफुल है उसके लिए तो कानून बना ही नहीं है, रूल मेकर इज द रूल ब्रेकर, उनको पता है कि लूप होल्स कहाँ कहाँ पे हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि हमारे यहाँ पर जब ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बने थे तो स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस उनकी क्या है। स्ट्रक्चरल मतलब अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म होती है तो उसमें क्या लूप होल्स हैं। देन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस का मतलब ये है कि उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी इन नेचर हैं, किस हद तक वो लागू होती हैं। इसका मतलब एनएचआरसी या एचआरसी के पास में टास्क फोर्स होती है, अपनी पुलिस फोर्स होती है कि उनको वो ऑर्डर करे जाओ वहाँ पर रेड करो, उस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ, नहीं। दे हैव टू डिपेंड अपॉन द पुलिस एग्जिस्टिंग मशीनरी। दिस इज द स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, बट बिफोर दैट, व्हाई दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड।
because the Madras High Court is to decide on whether the recommendation made by the Human Right Commission panel is advisory in nature or binding upon the state. That is why such question have been asked. Now इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दी हुई है. आई होप दैट फॉन्ट जो है वो बहुत छोटा नहीं होगा और आप लोग देख भी पा रहे होंगे इसको. इसका PDF आई विल बी अटैचिंग इट टू अ गूगल ड्राइव एंड जो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. टेलीग्राम चैनल भी है एनालिस्ट IAS का, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो PDF आपको मिल जाएगा. तो ये वाला फोल्डर जो है मैं अगेन यही विश करूंगा आपसे कि या तो आप उसको लिख रहे हों या इस वीडियो को देखने के बाद में अपने जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाए हैं, यदि लास्ट ईयर के आंसर्स आपने लिखे हुए हैं उस क्वेश्चन को लेकर, तो वहाँ पर जो ये वाले नए पॉइंट हैं इसको आप ज़रूर लिख लेना. एंड मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नए पॉइंट ज़रूर मिलेंगे क्योंकि मैंने करंट डेवलपमेंट्स को इसमें डाला है. You might have seen the other videos also, but if you find any additional point, you please note it. Now the controversy before the Madras High Court stem मतलब निकली from the issue that what is to be done after the Human Rights Commission completes its inquiry and reaches a conclusion that human rights have been violated. इसका section 18 दिया हुआ है HRC का, right, that empowers Human Rights Commission to recommend to the concerned government to grant compensation to the victim. अब ये जो recommendation है ये advisory nature है and to what extent is to be implemented. This was the question. Compensation का एक amount भी हो सकता है, वो आपको follow करना है या नहीं, आप उसको ignore भी कर सकते हैं. यही क्वेश्चन था जो अभी मद्रास हाई कोर्ट को देखना है. अगेंस्ट द erring state मतलब the state in picture which is not following the rule or the recommendation by the NHRC or HRC to grant interim relief and to take various other steps. तो मेन बेसिकली यहाँ पर क्या है कि रिकमेंड जो वर्ड है ये कितना ज्यादा कंपल्सरीली टू बी फॉलोड बाय द स्टेट है. दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर इन दिस केस. नाउ another motivation in the UPSC mind is from the point that NHRC has celebrated its silver jubilee on October 12, 2018. इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, राइट. एंड बेसिकली जब ये बना था तो हमने यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशंस हैं, पेरिस प्रिंसिपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग हुई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस के अंदर में हुई थी, तो दैट इज वाई द पेरिस प्रिंसिपल. एंड जो ह्यूमन राइट है यहाँ पे H मिसिंग है. ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड 10th of December. दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन, बट दीज टू मोटिवेशंस वाज देयर जिसकी वजह से UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा. एक नेक्स्ट वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन पॉलिटी के मैं केवल 4 या 5 ही बताऊंगा. एंड आई एम नॉट बैटिंग कि ये क्वेश्चन UPSC पूछेगा ही 60 सितंबर से, मतलब अगले महीने से शुरू हो रहे हैं. आज 15 तारीख है, 15th of August. बट उन 4 या 5 क्वेश्चन में मेरी इंट्यूटिव फीलिंग ये है कि क्वेश्चन जरूर आएगा. इट विल नॉट बी मोर देन 30 minutes. मैं उसमें कुछ कंटेंट बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज की डेट में आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि आप तो इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट सब पढ़ रहे हैं. मैं तो एक पॉलिटी और इथिक्स की फैकल्टी हूँ, तो मेरे को केवल पॉलिटी, इथिक्स और गवर्नेंस के बारे में ही पढ़ना होता है. बट आपको तो सब चीज़ें पढ़नी होती हैं. तो मैं क्वेश्चंस केवल आपको बताऊंगा और उससे थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट बता दूंगा. बाकी तो आप सभी समझदार हैं, इतने सारे क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं. उन 4 या 5 क्वेश्चन को भी कर लेना, वेरीफाई भी कर लेना कि कितने क्वेश्चन उन 4 या 5 क्वेश्चन में से पॉलिटी के अंदर में आए हैं GS पेपर 2 के अंदर, राइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी विल बी हैविंग द फॉर्डर हियर इन ह्यूमन राइट कमीशन दैट ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी होती हैं. NHRC के जो चेयरपर्सन है वो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, और जितनी भी बॉडीज हैं जैसे NCW है, NCST है, NCST है,
एनसीबीसी है, ये सारी की सारी बॉडीज यदि कैसे भी करके परेशान होती है तो एनएचआरसी के पास जाती है। एनएचआरसी के चेयरपर्सन वो होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिनकी एज 65 ईयर्स थी। केवल एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन है, जो हेड हैं, उन वही केवल कंट्री में ऐसे पर्सन हैं जिनकी एज मतलब अपॉइंटेड ऑफिशियल्स में सबसे ज्यादा होती है। द रिटायरिंग एज इज 70 ईयर्स, 65 ईयर्स टू 70 ईयर्स। अदरवाइज इनके अलावा जितने भी दूसरे कमीशंस हैं उनमें 65 ईयर्स है। इसीलिए ये एक अम्ब्रेला बॉडी बन जाते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए ये बेसिकली सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का, सबका यूज करते हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि जहां जहां पे ह्यूमन राइट्स की बातें हैं, बेसिकली वायलेशन की बात ना हो के ह्यूमन राइट का रेस्पेक्ट शुरू हो। ये एक एनएचआरसी का ऑब्जेक्टिव है। ओके, बट ये वाला जो कंटेंट है वो आप जरूर डालने की कोशिश करना है इस वाले क्वेश्चन में। वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन नेक्स्ट। We could discuss more about this, but when like time is less and I had to give you the idea about the particular question only, and tacitly I have those developments which are very recent in nature, because इससे पहले के जो डेवलपमेंट होंगे वो तो आपको दूसरे वीडियोस में मिल ही गए होंगे, क्योंकि 6-7 महीने हो चुके हैं, काफ़ी सारे वीडियोस पुराने वाले क्वेश्चन पेपर के ऊपर बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the second last question. Analyze the distinguishing feature of the notion equality in the constitution of USA and India. Basically, when we talk about Article 14, Article 14 के अंदर में सीधी सीधी क्या बात लिखी है, that no one will be deprived of his life and liberty. Sorry, इसमें जो बात लिखी है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है that everyone will be and anyone will be treated equally, and there will be called as what is called as equality before law and equal protection of law. बेसिकली इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में जो अंतर है इसकी बात हुई है। ये एक बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फैब्रिक है। यहां पर एक को हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करते हैं, एक को हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एक को हमने बेसिकली यूके के फंक्शनैलिटी से लिया हुआ है, दूसरे को हमने यूएसए से लिया हुआ है, राइट। इंडिया में बेसिकली दोनों चीजों को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। नाउ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या अंतर है? यहां पर ये वाली चीज बेसिकली कोर्ट के प्रेमाइसिस में लागू होती है समझने के लिए, दैट कोई भी आदमी कितना भी बड़ा वीआईपी है या कोई भी आदमी कितना भी छोटा है, वो जज की निगाह में, ये जज है या कोर्ट है, बराबर होगा। सही बात है। आपका नाम सलमान खान है, आपका नाम XYZ है, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी अमीर हैं, गरीब हैं, सेम ऑफेंस के लिए सेम सजा मिलेगी। सेम रूल के अंडर में जो पनिशमेंट लिखा हुआ है उतना ही आपको भी मिलेगा जितना किसी गरीब पर्सन को मिलेगा या किसी अमीर पर्सन या रिच पर्सन को मिलेगा। ये बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ है। मींस कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सबसे पहले क्या कहता है, दैट किसी भी पर्सन के साथ में no one will be deprived of his life and liberty without following the rule and the person has been hurt. इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ इज अबाउट नॉट रेक्स लेक्स, दैट यहां पे किंग जो है वो लॉ नहीं है, यहां पे लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। राजा कानून नहीं, कानून राजा है। राजा का बेटा राजा भी कानून नहीं। राहुल गांधी है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, सॉरी इसको कट करना पड़ेगा, पप्पू। ओके,
लेक्स रेक्स, यहाँ पे एल मीन्स लॉ भी आप एक एनालॉजिकली समझ सकते हैं। लॉ इज द किंग, दैट इज द मेन थिंग। यदि किसी को भी हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट, टू बी हैंग टिल डेथ करना है, तो वो भी लॉ के अंडर में होगा। डेथ पेनल्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। किसी के घर को बेचना है, नीलाम करना है, ऑक्शन करना है, तो वो भी लॉ के अंडर में होगा, क्योंकि उसने बैंक का लोन नहीं दिया, राइट, वो एकदम इंसॉल्वेंट हो गया है। दैट इज हाउ इट इज। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, basically it is a positive concept. It says that like will be treated alike and alike will not be treated like. इसका मतलब क्या हुआ? Equal will be treated equally and unequal will not be treated equally. अगेन ये बेसिकली कहना चाहता है दैट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, ये कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं अभी और ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। ये पर्सन जो है वो मलनरिश्ड था बचपन में, उतनी फैसिलिटीज नहीं मिली जितनी इसको मिली। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, पैसे भी पूरे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में। ये सिंगल रूम में रहता है, ये बेचारा 4 लोगों के साथ में रहता है। कोचिंग भी कर नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं थी, तो जैसे तैसे कर रहा है। एंड because he got birth in a particular caste, so he is in a reserved class. So यहाँ पर बेसिकली एग्जाम है और एग्जाम में एक दूसरे को एक के ऊपर फाइट करनी है। तो कैसे करेंगे? यदि ये पर्सन आपस में लड़ रहे हैं तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। यदि हमें इन्हें इक्वल बनाना है और उसके बाद इसको फॉलो करना है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमने जैक 1 लगा दिया, एक बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन दे दिया, एक AK-47 दे दी, अब दोनों की फाइट करवाई। नाउ दिस जैक इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन इन इंडिया एंड इन यूएस इट इज कॉल्ड एज एफर्मेटिव एक्शन। इसके ऊपर कभी और वीडियो बना देंगे दैट रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन में क्या अंतर होता है। ये एक रिजर्वेशन फैक्टर जो कि लोग नेगेटिव परसीव करते हैं, दो आई एम एग्रीइंग टू इट कि ये अपने आप में ठीक है, बट इसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में कि रिजर्वेशन का हमने पॉलिटिकल रीजंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया है, चाहे वो मंडल हो या कमंडल हो। पहले की बातें कर रहा हूँ मैं। उसके लिए भी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट अ सीरीज दैट विल बी नेम्ड एज स्टोरीज बिहाइंड द डेमोक्रेटिक इवेंट्स इन इंडिया सो फार। लेट्स सी कब शुरू हो पाता है सिलसिला। सो ये एक रिजर्वेशन वाली थीम यहाँ पे बैठती है। जो रिजर्वेशन वाली चीज कोर्ट में नहीं लग रही थी, वो कोर्ट के बाहर जब हम वेलफेयरिस्टिक थिंग्स या गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम सोच पाएंगे। यही इसी वजह से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स। एंड यूएस के अंदर में और इंडिया के अंदर में प्राइमरीली कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ये चलेगा, बट फैक्ट्स के रूप में ये कुछ एक चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे यूएस के अंदर में ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो होती है, वहां पे सर्टिफिकेशन भी होता है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 14 is talking about right to equality. Article 14 to 18 talks about right to equality. We have one nationality, that is Indianship, but there in US dual citizenship is there, which is a different concept of equality, right? Then एक factual difference for the sake of difference ये है कि वहाँ का इक्वलिटी कॉन्सेप्ट पुराना है, 1789 का है, हमारे यहाँ पे 1950 का बनता है। तीसरा एक डिफरेंट सिंबॉलिक डिफरेंस 2 इयर्स का डिफरेंस है, जो कि 16 इयर्स यूएस में फॉलो होता है, हमारे यहाँ पे अपर लिमिट 14 की होती है। एंड सोशल इक्वालिटी जो है वो यूएस के अंदर में गारंटी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे सोशल इक्वालिटी नॉट ओनली इन प्रीएम्बल but also in the constitutional fundamental rights part 3 आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में गारंटी होती है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं, बट मेन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो मैं एक बात और बोलूंगा कि इक्वालिटी के साथ में आप ये वाला वर्ड जरूर लिख देना, इक्विटी।
एंड ये जो इक्विटी वर्ड है ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। इक्विटी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनइक्वल पीपल इक्वल। ये हमने जो इक्वल बनाया है इन दोनों को जैक इफेक्ट लगा के, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इक्विटी। इक्विटी इज सुपरसेट एंड इक्वलिटी इज सबसेट ऑफ इक्विटी। बिफोर यू अप्लाई इक्वलिटी you need to apply equity to make it relevant, to make it meaningful. I repeat, equity को पहले अप्लाई करना है इक्वलिटी को अप्लाई करने से, और इक्वलिटी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इक्विटी ही कलर लेकर आएगी, इसलिए आप पहले अप्लाई करें। इक्विटी एक बड़ा फैक्टर है, इक्वलिटी उसके अंदर में शामिल होता है। दिस आई जस्ट सेड एंड आई रिपीटेड इट। आई कैन गो फॉर अनदर क्वेश्चन। This is the second last but one question. Explain the constitutional provision under which legislative council are established. This is one part of the question. Review the working of the current status of legislative council with suitable illustration. अब इसके बारे में मोटिवेशन क्या था यूपीएससी को? इसके बारे में यूपीएससी को ये मोटिवेशन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश की एबोलिश हुई, तो क्यों हो रही है? आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं, राइट, अराउंड 6 आर हैविंग इट। पहले और भी सारे लोग रखते थे। सो फार 8 स्टेट्स हैव एबोलिश्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव आज की डेट में यदि काउंसिल है तो जो लोग एमएलए बन के एंजॉय नहीं कर पाते हैं या एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं विधानसभा में, उनको विधान परिषद, जिसको इंग्लिश में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसमें एकोमोडेट करते हैं और उसमें नॉमिनेटेड पीपल ज़्यादा हैं। तो एक तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछ लिया है कि आर्टिकल 169 कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर आर्टिकल 171 के अंदर में कैसे दिया हुआ है। बट टू बिगिन विथ द मोटिवेशन, एज ऑफ नाउ 8 इंडियन स्टेट्स have abolished their legislative council owing to several different reasons. I am not going into the reason, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड अभी आंध्र प्रदेश के लिए यह है कि उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना है, पैसा भी खर्च होता है इस वजह से, और भी रीजन बनते हैं कि भाई तेलंगाना बन गया है स्टेट, छोटा रह गया है, कि क्यों रखें, राइट। तो ये मोटिवेशन बेसिकली आया। बट हम लोग समझना चाहते हैं कि ये जो स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, देन यहाँ पर जो लोअर हाउस होता है इट इज कॉल्ड एज विधानसभा, अपर हाउस इज कॉल्ड एज विधान परिषद एंड गवर्नर। विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस, दैट इज विधान परिषद। इन पार्लियामेंट अभी अभी मैंने आपको बताया था दैट लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट होते हैं। एनालॉजिकली आप यदि देखेंगे तो एक कंपैरिजन भी कर पाएंगे समझने के लिए। लोकसभा में अभी मैंने आपको बताया था दैट 543 मेंबर्स मींस अभी हैं, वैसे 552 तक हो सकते हैं आफ्टर 2026। 1971 is the base for the population. Then राज्यसभा के लिए ये मेंबरशिप 245 है अभी, right? 12 being the nominated member in it. Maximum can be 250, but population is not that much in proportion to that we have so far. Now, विधान परिषद यहाँ पर एक टेम्परेरी हाउस है, राज्यसभा को एबोलिश नहीं किया जा सकता, ये एक सबसे बड़ा अंतर होता है। इस विधान परिषद अपर हाउस का जो मदर है और जो किलर है वो दोनों ही विधान सभा है अंडर आर्टिकल 169 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज आर्टिकल 171 सब्जेक्ट। नाउ विधान सभा और लोकसभा कि जब आप सीटों को कंपेयर करेंगे देन यू विल फाइंड द रेंज ऑफ सीट फ्रॉम 60 to 500 for Vidhan Sabha, that is Legislative Assembly, because every state population is different and the seats of Vidhan Sabha are in proportion to the state population. जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए सबसे बड़ा जो विधानसभा है वो यूपी का बन जाता है, राइट। नाउ सिंस जो सीट हैं वो हर स्टेट में वेरी करती है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये x। नाउ
इन अ पर्टिकुलर स्टेट ये डिसाइड हुआ कि विधान परिषद, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है विधान परिषद को हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो विधान परिषद के यदि हम साइज की बात करें तो साइज बेसिकली इज टू बी दी 1/3 ऑफ द साइज ऑफ विधानसभा होगा। यहाँ का जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वेयरएज यहाँ पर जो होता है वो दोनों को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? MP ऑफ लोकसभा, MP ऑफ राज्यसभा, राइट। नाउ इन दोनों की यदि एज की बात करें तो वो एज भी बेसिकली 30 इयर्स होती है। नीचे जो लोअर हाउस है, इन दोनों हाउसेस की जो एज है वो कॉमन है 25। नाउ कमिंग बैक टू द साइज ऑफ द पर्टिकुलर हाउस, ये 1/3 हो जाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन आया दैट 210 इज द साइज ऑफ विधानसभा। विधानसभा के अंदर जो MLA हैं वो 210 हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पे नॉमिनेटेड एक मेंबर और होता था एंग्लो इंडियन से, वो अब नहीं है, राइट। लोकसभा में और विधानसभा में अब नहीं होता, मोदी गवर्नमेंट ने डिसबैंड कर दिया है ये प्रोविजन। तो इलेक्टेड MLAs 210 हैं और विधान परिषद का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ तक ये बात पता चली कि विधान परिषद को बनाना है तो x/3 कर दें। ये जो नंबर है ये क्या क्या है? x का है, तो क्या हो जाएगा? 210/3 इक्वल टू 70। दैट विल बी द साइज ऑफ विधान परिषद। लेकिन इस वाला साइज से हमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही लोगों को निकालना है, राइट। सिंस द साइज इज नॉट फिक्स फ्रॉम फॉर एवरी स्टेट, साइज इज वेरिंग, सो नॉमिनेटेड मेंबर जहां पे टोटल साइज है उसका 1/6 होते हैं, राइट। देन रेस्ट 5/6 आर इलेक्टेड एज पर द कोटा। नाउ ये कोटा क्या है? अभी पहले मैं यहीं तक की बात को थोड़ा सा कन्फाइन करता हूं जिससे मैं इस वाले ग्राफ को आगे बढ़ा पाऊं। 70 आया था विधान परिषद का साइज, बिकॉज 210 था विधान सभा का साइज, उसका 1/3 होके 70 आ गया। तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको कौन लेके आएगा? गवर्नर। और वो कितने होंगे? वो होंगे 1/6 ऑफ टोटल नंबर का साइज। तो टोटल नंबर कितना है? 70। 70 में हमने 6 का भाग लगा दिया, तो जो एक संख्या आएगी वो अप्रोक्स 12 के बराबर। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं, गवर्नर को नॉमिनेट करना है। हमें याद आ रहा है कि प्रेसिडेंट used to appoint the Rajya Sabha MPs from 4 grounds if they are from art, literature, science and social service. I can write in short: art, literature, science and social service. आर्ट जैसे तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलते हैं तो वो भी एक अपने आप में कला है ना। विजय माल्या साहब भी हुआ करते थे सोशल सर्विस, राइट। लिक्वर बैरन अभी तो बेसिकली इंसॉल्वेंट हो गए। तो बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर 5 ग्राउंड होते हैं, 4 तो यही होते हैं प्लस एक कोऑपरेटिव भी होता है। कोऑपरेटिव से मतलब ये है कि किसी जो स्टेट का पर्सन है उसने वहाँ के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। जैसे अमूल इंडिया आज की डेट में आप देखते हैं, वर्गीस कुरियन का नाम याद आ जाता है, वाइट रिवॉल्यूशन। गुजरात का तो डेवलपमेंट पूरा कोऑपरेटिव के ऊपर ही बेस है, पूरा नहीं तो बाय एंड लार्ज। तो उनको भी हमें एक एकोमोडेट करने के लिए, एक गेस्चर देने के लिए ज़रूरी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 12 मेंबर, 70 में से यदि हम डिडक्ट कर दें इसको तो हमारे पास कितनी नंबर बचती है? 58। और ये 58 किसके बराबर है? 5/6 के। 5/6 के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये कोटा सिस्टम फॉलो होता है। तो 5/6 का जो कोटा सिस्टम है वो 4 जगह से आता है। कौन कौन सा? उसमें से जो 1/3 है वो लोकल बॉडीज से आते हैं। LB शॉर्ट में लिख दिया है। लोकल बॉडीज जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ, पंचायत हुई, म्यूनिसिपैलिटी हुई, राइट, नॉमिनेटेड। देन
1/3 जो आते हैं वो एमएलए के नॉमिनी होते हैं, मतलब एमएलए नहीं होते, नॉमिनी, उनके जो नोन पर्सन है या उनके विजडम के हिसाब से पर्टिकुलर स्टेट का जो रेसिडेंट है वो वहाँ के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। और ये भी बात नहीं कि वो स्टेट का ही रेसिडेंट हो, एडजेसेंट स्टेट से भी हो सकता है। जनरली बेटा बेटी ही होते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटी। सो 1/3 यहाँ से होने चाहिए। देन उसके अलावा 1/12 टीचर्स कम्युनिटी। टीचर्स कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ एनालिस्ट आईएएस में या ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके टीचर्स, नो, मिनिमम टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब मिनिमम पीजीटी होना चाहिए, टीजीटी भी ना हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। देन उसके अलावा 1/12 ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 years स्टैंडिंग। का मतलब ये है कि शायद इनकी कोई ग्रेजुएशन लेके बाहर से आ गया और वो ऐसा कर ले, नो, इट्स नॉट दैट। जब आप इन नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो इन सब का जो एडिशन है वो 5/6 के बराबर आएगा। नॉमिनेटेड मेंबर आप 1/6 और जोड़ लेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 5/6 नंबर है ये बेसिकली किसके बराबर है, 58 के। अब आप 58 को आगे यदि ले जाना चाहते हैं इस कहानी को तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे आगे कर देते हैं 1/3 जो लोकल बॉडीज से आ रहे हैं इंटू 58 कितना होगा, 1 एंड अराउंड 19। तो ये वाला नंबर हम कर देते हैं 19। एमएलएस के जो नॉमिनी है वो भी 19 हो जाएंगे क्योंकि वो भी 1/3 है। फिर बचेगी बात 1/12 इंटू 58। यहाँ पर हमें बेसिकली एक मिस्टेक हमने की है, यहाँ पे हम लोग 58 का ना करके हमें यहाँ पे 70 का करना पड़ेगा। रीजन इज वेरी सिंपल हेयर, बिकॉज 5/6 इज इक्वल टू 58 बट द ओवरऑल नंबर इज 70, अदरवाइज वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये चीज, बट लेट मी डू इट एज ऑफ नाउ। 70 से यदि हमने इसको किया तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, 2 एंड 3, 23 प्लस 23 एंड 1/12 इंटू 70। सो यहाँ पर 6 प्लस 6 अराउंड अप्रॉक्स। सो आप देख लीजिए 6 और 6 12 एंड 23 प्लस 23 46। 46 प्लस 12 इक्वल टू 58 प्लस 12 इक्वल टू 70। एक अलग से स्लाइड पे मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन हमारा था 210 एमएलए का नंबर है, हमें विधान परिषद के मेंबर्स को बनाना है, तो 210/3 किया तो 70 आया। 70 में से इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेके आना है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो 1/6 हैं, तो 1/6 इंटू 70 किया तो हमारे पास लगभग 12 मेंबर आए। तो बचे हुए मेंबर जो इलेक्टेड होंगे जो 5/6 के बराबर हैं वो कितने हैं, 58। नाउ 58 मेंबर्स में से 1/3 हमें लोकल बॉडीज से लेके आने हैं, तो 1/3 इंटू 70, ये हमारे पास लगभग 23 आ जाएगी संख्या। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये बात दी हुई है कि 0.5 से नीचे कोई भी डेसिमल पॉइंट आता है तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे और 23.3 तो 23 ही माना जाएगा। ओके, नाउ 1/3 एमएलए के नॉमिनीज से आना है, तो 1/3 इंटू 70 ये भी 23 आएगा। देन 1/12 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से आना है, तो 1/12 इंटू 70 ये बेसिकली कितना है, 6 है अप्रॉक्स। एंड ये 1/12 इंटू ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी
ये भी कितना है 6 है। इसको हमने यदि टोटल किया तो हमारा कितना आया 58 और ये कितना था 12। इस तरीके से हमारी विधान परिषद बनती है। हालांकि किताबों में ये न्यूमेरिकल नहीं दिया होता, मैंने इसे यहाँ पे कराया है। आप इसे रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं और इस वीडियो में मैंने इसे 2 बार करा दिया है बिकॉज एक छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, राइट। यहाँ पे ये 58 मैंने लिख दिया था, राइट। So that's how it is. Now I hope you have understood it well. Second part of the question is talking about the review of the legislative council. तो यहाँ पे आप यही बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात कि हेस्टी जो लेजिस्लेशंस हैं वो रुकते हैं जहां जहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज प्राइमरीली बिलोंगिंग टू legislative assembly, that is Vidhan Sabha, and whatever bills are introduced in lower house, generally the government, the executive, the Vidhan Sabha agrees to it. The honest criticism is coming out of the acts, the efforts put by the upper house, that is legislative council, right? And they are relatively veteran, senior as far as the age is concerned. Then second thing is that it is also a revisory house, that it can send the ordinary bills for the reconsideration to the lower house. That is also one thing, right? And it is also becoming a buffer, that all media is also dependent upon the upper house for the honest criticism. Then in no way we can say that the upper house is secondary house. It is not secondary house. It is just a second house, because the democratically elected government has to manage the monetary matters. In no way that the position of the upper house will be you can say deteriorated or will be given depressional effect. We can say that the upper house is having its own significance and place. But yes, negative part of the story is that if the state government is not able to accommodate all the veterans, all the people as the MLAs in the house, they create another house to accommodate them as MLC so that they can also enjoy the government facilities. When the state has been carved out, like in Telangana, the Andhra Pradesh, the recent story is going on, then only it happens. Or otherwise the state government find the upper house of no use as far as the political reasons are concerned, then they disband that house, right? So you can write all these things, and whenever you are reading the newspaper, please write the recent development, because such questions are close-ended question, but in newspaper in a month 2 or 3 information you will be able to find, right? Now the last question of today's video is related to departmental related standing committee, राइट। इनके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, बट मोटिवेशन ये है कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन फ्रेम क्यों किया। मैं हमेशा उसी स्मार्ट वर्क के पीछे जाना चाहता हूं कि हम लोग कम से कम पढ़ें, एक इंट्यूटिव फीलिंग हो कि ये क्वेश्चन जरूर आए, राइट। उसके रीजंस ये हैं कि कुछ एक लेजिस्लेशंस मैंने फिल्टर आउट किए हैं जिसमें इन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का कंट्रीब्यूशन बना है। हालांकि ये एक अलग बात है कि 1993 में ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हमने बनाई, 24 स्टैंडिंग कमेटीज हैं, राइट। एंड आज की डेट में एडहॉक कमेटीज भी होती हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल थिंग इज दैट जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया तो काम हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। You will be surprised to note that when the budget is to be discussed, not more than 20% budget can be discussed in full budget session. And that is why it is necessary to have the small groups which can filter out the ingenuine proposed amount and only the genuine part is there. हम लोग कट मोशंस कितनी जगह पे लगाते रहेंगे। And something is called as guillotine, a French concept, जहां पर बिना डिस्कशन के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को पावर है कि टाइम कम रह गया है, बजट सेशन को प्रोरोग करना है, मतलब उस सेशन को एंड करना है, तो हम बिना डिस्कशन के वो बिल पास कर दें।
if the bill is related to money, the money bill is there without discussion, if it is passed, तो ये तो पूरी की पूरी प्लानिंग हो गई गवर्नमेंट की कि हमें टाइम वेस्ट करवाना है और लास्ट में वो बिल पास करवा लेना है. It will be defeat on the part of the accountability of the parliament that is to be ensured from the executive and the legislature side is not there. And that is why the departmental related standing committees are filling this gap. Now, the recent example, the Committee on Health and Family Welfare studied the Surrogacy Bill 2016, which prohibit commercial surrogacy but allow altruistic surrogacy. मीन्स इट इज़ अनदर केस कि भाई जो इनफर्टाइल कपल हैं उनके बेबी नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है तो दे कैन गो फॉर इट. सरोगेसी इशू को लेके बहुत सारी कंपनियां चल रही थी. अभी तो 10 साल की जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. बट एज अ लेमैन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट यदि किसी पर्सन को, मेरे जैसे पर्सन को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जिसने डॉक्टरी नहीं की हुई है, तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज होते हैं, वो लोग के अंदर में एक्सपर्टाइज पहले तो होती है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, नहीं तो दे आर able to take on board the doctors, the medical council, to have the relevant information. So this is the difference between parliamentary control and the importance of departmental related standing committee. Right? Now the standing committee on health made several recommendations to the National Medical Commission bill in 2017. Now the layman, a journalist, and the technical person or a biologist, दोनों में अंतर होता है. Right? So they know everything about something, but the journalist knows something about everything. So every parliamentarian may not be knowing about the nitty-gritty of particular thing. So that is why this gap is also filled. Now Consumer Protection Act 2019, overhauling 1986 law was recently passed during the budget session. इन सारे के सारे बिल्स के अंदर में डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग जो कमेटीज हैं उनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो रिकमेंड करती हैं, एडवाइजरी इन नेचर होता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट हुई है बिकॉज उनकी नो हाउ मैटर करती है. राइट नाउ कुछ एक नीचे और भी लिखे हुए हैं. सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2019, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2018 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन बिल which was done in the recent months. You have to just mention it in the upcoming main examination just after a month it is to be there. Now यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 16th लोकसभा, अभी तो 17th का है, 17% ऑफ द बजट वाज डिस्कस्ड इन द हाउस. अभी मैंने आपको बताया कि 20% से ऊपर बजट का टोटल प्रोपोर्शन डिस्कशन करना ही अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है. एंड पूरा का पूरा बजट हम डिस्कशन ना कर रहे हैं और उसको ऐसे ही पास करते हैं तो इट इज अ डिफीट. मेन तो मुद्दा पैसे का ही है. एंड इन लास्ट 10 years पार्लियामेंट मेट फॉर 67 days per year on an average. सरप्राइज, इट इज टू बी एटलीस्ट मिनिमम 100 days, 3 सेशंस का मिला के. ओके, सो दिस इज जस्ट नॉट गुड. पहले तो पार्लियामेंटेरियंस जो काम करते थे रात को 2-2 बजे तक काम करते थे, क्योंकि उन्होंने तो स्ट्रगल ऐसा किया था जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, फैसिलिटी मिल गई तो और एनर्जी बढ़ गई थी. आज की डेट में तो पार्लियामेंट के अंदर भी लोग सोते हुए नजर आते हैं. एब्सेंटिज्म बहुत हो गया है. नाउ दिस इज हाउ इट इज. So we have discussed all the things, and what I mean to say is that the content here I have included. The content that I have included here primarily is from the recent development, and I can say that this video is having many new point. I will like कि आप अपनी नोटबुक के अंदर में वो अलग से पॉइंट बना लो. अगले साल भी जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो ये वाले पॉइंट आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं. एनालिसिस इज अनदर थिंग दैट आई हैव स्पोकन अबाउट, but the content I have covered here. The PDF will be available. I have told you the comment box will be there with the link. Google Drive पे होगा.
टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी हम इसको अपलोड कर देंगे. You can be part of that group. So I hope that you have enjoyed this video. Next video I will be making for ethics separately and for polity, the most probable question that can be there, and also the governance video is due, right? IR video will be taken by another faculty, right? One small video has already been there from the prelims IR, but mains IR we have not uploaded so far. Till then, bye bye, जय हिंद, एंड अगेन आज 15 अगस्त है, उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.